Hari Om all. We are ready to begin this evening's satsang. Please sprinkle water all around you and on yourself. Om apavitraha pavitro va sarvavasthangatopi va yah smaret pundarikaksham sabhahyabhyantaraha suchi. Now sip water from the palm of the right hand 3 times. Om Keshawaya Namaha. Om Narayanaya Namaha. Om Madhuvaya Namaha. Rinse your hands. Om Rishikeshaya Namaha. Om Govindaya Namaha. Om Madhusudanaya Namaha. If you have a coarse ring, you may put it onto the ring finger of the right hand now. Om Pavitre Stho Vaishnavyo Saviturvaha Prasava Utnamya Chidrena Pavitrena Surya Sirashma Bhihi Tasya Te Pavitrapate Pavitra Putasya Yat Kamaha Pune Tachakeyam. Now apply a chandan tika to your forehead using your thumb. Om Chandanam Bandite Nityam Pavitram Papanasanam Apadam Harite Nityam Lakshmi Vasati Sarvada. Light the chirag if it is not lit already. Om Bodhipatvam Brahmarupa Andhakara Nivaraka Imam Mayakhtang Pujang Grihastejo Pravardhaya Om Deepaya Namaha. Sprinkle some water on the bedi. Om Prithvi Tvaya Dhrita Loka Devi Tvan Vishnuna Dhrita Tvancha Dharya Mandevi Pavitram Kuru Chasanam. Let us all recite Ved mantras. You can follow on the screen or you can use the text that you have with you at home. Om 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 Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwara Guruhu Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Gurave Namaha. Dhyan Moolam Gurur Murtihi Puja Moolam Guruhu Padam Mantra Moolam Gurur Vakyam Moksha Moolam Guruhu Kripa. Om Swasti na Indro Vritashravah Swasti na Pusha Vishwavedah Swasti nastarik Shor Arishtnemihi Swasti no Brihaspatirdadhatu Om Payah Prithivyam Payah Oshadhishu Payo Divyantarikshe Payodhaha Payasvatihi Pradishaha Santu Mahyam. Om Vishnoratamasi Vishno Shnaptrestho Vishno Surasi Vishnordhuvasi Vaishnavamasi Vishnavatva. Om Agnir Devata Vato Devata Suryo Devata Chandrama Devata Vasavo Devata Rudra Devata Ditya Devata Maruto Devata Vishwe Deva Devata Brihaspatir Devatendro Devata Varuno Devata. Om Dyoho Shantirantariksha Shantihi Prithivi Shantir Apah Shantiroshadhayah Shantihi Vanaspatayah Shantir Vishvedevah Shantir Brahma Shantihi Sarvagun Shantihi Shantireva
शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव तद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतो तब्धासु अपरितास उद्भिदः देवानो यथा सदमिद्वृधे असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। ॐ देवानां भद्र सुमतिर्यजूयतां देवानां प्रातिरभिनो निवर्तताम् देवानां सख्यम् उपसेदिमा वयं देवान् आयुः प्रतिरन्तु जीवसे। ॐ तान् पूर्वय निविदाहुमहे वयं भगं मित्रम् अदितिं दक्षमस्त्रिधम् अर्यमनं वरुणगं सोममश्विना सरस्वती नः सुभगामयस्करत्। ॐ तन्नो वातो मयो भुवातु भेषजन्तन्माता पृथिवी तत्पिता द्योः तद्ग्रावानः सोमसुतो मयो भुवस्तदश्विन श्नुतन् धिष्ण्यायुवम्। ॐ तमीशानं जगतस्तस्तु शस्पतिं धियन् जिन्वमवसे भूमहे वयं पूषाणो यथा वेद साम सद्वृधे रक्षिता पायुर्दब्धः स्वस्तये। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृधश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्योररिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ पृषदश्वा मरुतः पृश्निमातरः शुभं यावानो विदथेषु जग्मयः अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा हवसागमन्निः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा वंशस्तनुभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः। ॐ शतमिन्नु शरदो अन्तिदेवायत्रानश्चक्राजरसन्तनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मद्यारि ऋषितार्युर्गन्तोः। ॐ अदितिर्द्योरदितिर् अन्तरिक्षम् अदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातम् अदितिर्जनित्वम्। ॐ ऋचं वाचं प्रपद्ये मनो यजुः प्रपद्ये साम प्राणं प्रपद्ये चक्षुः श्रोत्रं प्रपद्ये वागोजः सहोजो मयि प्राणपानौ। ॐ तं पत्नीभिरनुगच्छेम देवाः पुत्रैर्भ्रातृभिरुत वा हिरण्यैः नाकङ्गृबनानः सुकृतस्य लोके तृतीये पृष्ठे अधिरोचने दिवः। ॐ आयुष्यं वर्चस्य ग्वङ्राय स्पोषमोद्भिदम् इदग्वं हिरण्यं वर्चस्वचैत्राय विशताद्युमाम्। ॐ द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः। ॐ शान्तिः शान्तिः सुशान्तिर्भवतु। ॐ हे हे रम्ब त्वमेहेहि अम्बिका त्र्यम्बकात्मज सिद्धि बुद्धिपते त्र्यक्ष लक्ष लाभ पितुः पितः नागास्य नागहारत्वं गणराज चतुर्भुज भूषितः स्वायुधैर्दिव्यै पाशाङ्कुशपरश्वधेः आवाहयामि पूजार्थं रक्षार्थं च मम कृतोः इहागत्य गृहाण त्वं
पूजां कृत्युञ्च रक्ष मे। ओम मनोज्जवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानारयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अञ्जनीगर्भसम्भूतं कपीन्द्रं सचिवोत्तमं रामप्रियं नमस्तुभ्यं हनुमान् रक्ष सर्वदा। ओम ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासोवसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारूढ सीतामुखकमलमिललोचनं निर्दाभन् नाना अलङ्कारदीप्तं ददत भुरुजट मण्डलं रामचन्द्रम्। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितः तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगण देवाय तस्मै नमः। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ओम शांतं पद्मासनस्थं शशधरमुकुटं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं शूलं वज्रं च खड्गं परशुम् अभयदं दक्षिणाङ्गे वहन्तं नागपाशं च घण्टां डमरुकसहितं अंकुशं वामभागे नाना अलङ्कारदीप्तं स्फटिकमणिनिभं पार्वतीशं नमामि। ओम या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मा अच्युत शंकर प्रभृतिभिर देवैः सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। ओम लक्ष्मी क्षीर समुद्र राजतनयां श्रीरंगधामेश्वरीं दासीभूत समस्त देव वनितां लोकैक दीपांकुरां श्रीमन्मंद कटाक्ष लब्ध विभव ब्रह्मेन्द्र गंगाधरान् तान् त्रैलोक्य कुटुंबिनीं सरसिजां वंदे मुकुंद प्रियाम्। ओम सीताराम पवन सुत हनुमान राधे कृष्ण की जय। क्या चालीसा और भजन। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुखर सुधाम बरनो रघुबर बिमल जसु जो दायक फल छाम बुद्धहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमत के संगी कंचन बरन विराज सुभेशा कानन कुंडल
कुंडल कुंचित केशा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, काहे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महा जगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाई संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपत कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिया भरत सम भाई। सहस बदन तुमरो यश गावे, अस कहि श्रीपद कंठ लगावे। संतादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद शारद सहित अहिसा। यम कोविद दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहीं सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राज पर दीना। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वरी भय सब जग जाना। युग सहस्त्र जो जन पर भानु, लीलोताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माई, जल्दी लांघि गए अचरज नाई। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहि तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। तेज संभारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन कर बचन ध्यान जुड़ावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे।
मस्त से भी नानिद के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सधा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजे राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से सर्व सुख करहि। संकट हरे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई, छूटे ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साकी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महादेरा। कीजे नाथ हृदय महादेरा। पवन तने संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। मैं हिमाचल की बेटी, मेरा भोला बसे है काशी। सारी उम्र तेरी सेवा करूंगी, बनकर तेरी दासी। शंभो शिव 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 शंभो। ऐसा डमरू बजाए भोलेनाथ रे, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाए भोलेनाथ रे, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाए भोलेनाथ रे, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू को सुनकर कान्हा जी आए, कान्हा जी आए संग राधा भी आए। डमरू को सुनकर कान्हा जी आए, कान्हा जी आए संग राधा भी आए। वह सखियों का, वह सखियों का, वह सखियों का मन भी मगन हो गया। जब डमरू बजाए भोलेनाथ रे, ऐसा डमरू बजाए भोलेनाथ रे, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाए भोलेनाथ रे।
संग कार्तिक चले, वह अम्बे का, वह अम्बे का, वह अम्बे का मन भी मगन हो गया। जब डमरू बजाए भोलेनाथ तेरे, ऐसा डमरू बजाए भोलेनाथ तेरे, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाए भोलेनाथ तेरे, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू को सुनकर रामा जी आए, रामा जी आए संग लक्ष्मण जी आए। डमरू को सुनकर रामा जी आए, रामा जी आए संग लक्ष्मण जी आए। मैया सीता का, मैया सीता का, मैया सीता का मन भी मगन हो गया। जब डमरू बजाए भोलेनाथ तेरे, ऐसा डमरू बजाए भोलेनाथ तेरे, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाए भोलेनाथ तेरे, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू को सुनकर ब्रह्मा चले, जहाँ ब्रह्मा चले वहाँ विष्णु चले। डमरू के सुनकर ब्रह्मा चले, जहाँ ब्रह्मा चले वहाँ विष्णु चले। मैया लक्ष्मी का, मैया लक्ष्मी का, मैया लक्ष्मी का मन भी मगन हो गया। जब डमरू बजाए भोलेनाथ तेरे, ऐसा डमरू बजाए भोलेनाथ तेरे, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाए भोलेनाथ तेरे, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। आज हम लोग भगवत गीता अध्याय 5 और 17वां श्लोक को पढ़ेंगे। वी रीडिंग चैप्टर 5 verse 17 of Bhagavad Gita. Let's all join in together. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Tad buddhyastad atmanas tannishtastat parayanaha gacchantya punaravrittim jnana nirdhuta kalmashaha. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Let's read that again. Tad buddhyas tad atmanas tannishtas tat parayanaha gacchantya punaravrittim jnana nirdhuta kalmashaha. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. So here Bhagavan is talking about that pure state that we can reach, enlightenment. Let's take individual words first. Tat buddhya. That person whose buddhi, intelligence, is tat, is always engaged in that being Parabrahm, Supreme Lord.
Tad Atmanas. Tad Atman, and whose Atma, whose self, if you want to call it that, is always in the Supreme, whose mind is always on the Supreme. So tad buddhis, tad atmanas, whose mind, body, and soul, if you want to use it, understand it like that, is always directed towards the Supreme. How? Nishtha. Nishtha means it is established in the Supreme. Right? And parayana. Parayana means takes complete shelter in the Supreme. So everything, mind, body, soul, intelligence, is always focused on Bhagwan. Gachan, gachanti. Gachanti means such a person whose mind, body, intelligence, etc. is fully focused, established, जो निष्ठा पूर्वक भगवान में लीन है, वो कहाँ जाते हैं? Where does he go? Gachanti. Where does he go? To that state where punar avrittim. A punar avrittim. That means for him, there isn't a punah, a repeat of birth and death. That means he brings to an end this cycle of birth and death, and therefore what we term that as liberation. Jnana, how is all of this happening? How is it that Atma, intelligence, all is focused on Bhagwan? Jnana nirdhuta kalmasha. Jnana means through knowledge, nirdhuta, being purified. जो जिसका ज्ञान की तरह से वो नॉलेज अपने को ये निर्धूत होता है, करता है. निर्धूत मीन्स टू प्यूरिफाई. सो ही इज प्यूरिफाइड थ्रू नॉलेज. तो यहाँ भगवान कहते हैं कि जिनका मन तद्रूप हो रहा है. तद्रूप मीन्स दैट फॉर्म बीइंग द फॉर्म ऑफ भगवान. और जिनका बुद्धि तद्रूप हो रही है, and whose intelligence is continuously focused on that being the supreme self. ऐसा पुरुष, such a person, ज्ञान की द्वारा, through his knowledge, what happens? पाप रहित होकर, having been purified through knowledge, परम गति को प्राप्त होता है. ये जन्म और मृत्यु से मुक्त हो जाता है. He becomes freed from birth and death. So one whose intellect, intelligence, and his entire being is fixed in that Supreme, the Supreme Lord, and who has been cleansed of all impurities by knowledge and wisdom, such a person attains a state from which there is no return. A punar avritti, there is no return. So we need to become wholly devoted to the Supreme. What do you mean by wholly? In everything that we do, the body, the mind, the breath, everything, all become oriented towards Bhagwan, towards the Supreme Lord. Only then can we achieve that purity. Nirdhuta. Nirdhut here refers to purity. That purity of mind and body, which will grant us liberation. So a person who is established like this, who is firmly fixed in intelligence, in his thinking, in his action, in his speech, in everything that he does, he is firmly fixed in the Lord. He sees the whole universe
as the form of Bhagwan, as the form of Sri Krishna. Everything that has come into creation, he sees as Bhagwan himself. So he recognizes that everything and every person and every being springs from him, from the Supreme. Therefore, the heart and the mind are thus completely enveloped in the love for God. So his bhakti has purified him, has granted him this knowledge and wisdom to purify him and cause him to be completely immersed in Bhagwan. In the Upanishads, we come across this very popular expression, tat tat tvam asi. Thou art that, you are that. That referring to the supreme consciousness. So tat tvam asi indicates that we are something other than this material existence that we are talking of, so focused on normally. We are more than that. We are different from this material body. So what are we then? We are that, tat. And that here refers to consciousness. Which consciousness? That consciousness which springs from the supreme consciousness. So when our knowledge reaches the state where we can see this, that we are not this body, we are this consciousness which comes directly from the supreme consciousness. Then we start to purify ourselves and we become fully fixed and established in thought, word, deed, in everything that we do in the Supreme. So once we are cleansed of all impurities by becoming fixed with our intellect and being in the Supreme, then we go beyond birth and death. Punaha. Punaha means again. Punaha means not again. Avrittaha. We are not born again. We go beyond birth and death. This situation, this state that we are talking about, right, can only be achieved from the position of existence as a human being. That means all of us who are today listening to the satsang, we have done some good in our past, a lot of good actually, for us to have a human birth. And therefore we must make full use of this human birth to try to reach this state. Which state? Buddhi, man, atma, hamara sab karma, all our actions must be oriented towards the divine love, the love for the divine. Right? Do not waste this human birth by doing all the wrong things. So when the intellect is absorbed in that means in the Supreme, then one's whole being becomes established, nishta ho jata hai in that Supreme. And purity in life is then gained by wisdom and knowledge. So we have to first try to understand this, that we are not this, we are tattvam asi. And with our intellect then rooted in the Supreme, we are not then born again. So the intellect becomes fully absorbed in that knowledge that I spoke about just now. That such a person's mind becomes divine. If his mind is divine, therefore his thoughts will also be divine. And when the thoughts are divine, then the thoughts give rise to divine action. So all of this leads us to become freed from this world of likes and dislikes.
So the state of liberation that we're talking about, this state of freedom that we are talking about, does not mean that there are no likes and dislikes in our life. There is no difficulty in our life. There's no pleasure in our life. All that will be there. But we will be freed from that world. We will be beyond that world. So liberation is not necessarily achieved only after death. That liberation, which we get through knowledge and focusing our intelligence, our mind and activities into the Supreme, that liberation can occur while we are still in this life. That is why our intelligence, our mind, our body, our activities are all focused in Him. Once they are all focused in the Supreme, then we've reached the state of liberation. तो यहाँ पर गीता को आराम करेंगे. We'll pause the Gita here and we'll go on now to Ramayana. And today we are doing Balkan. We're beginning from Doha 229. First, the introductory mantras and Pratna. Jehi sumirat siddhi hoy sitaram गणनायक करिवर बदन हरौ अनुग्रह सोय सीताराम बुद्धि राशि शुभ गुण सदन मूक होई वाचाल सीताराम पंगु चढ़े गिरिवर गहन जासु कृपा सुदयाल सीताराम द्रवौ सकल कलिमल दहन नील सरोरुह श्याम सीताराम तरुण अरुण बारिज नयन करौ सुमम उरधाम सीताराम सदा क्षीर सागर शयन कुंद इंदु समदेह सीताराम उमा रमन करुणा अयन जाहि दीन पर नेह सीताराम करो कृपा मर्दन मयन बंदौ गुरु पद कंज सीताराम कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज सीताराम जासु वचन रवि कर निकर सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय. कथा आरंभ होत है सुनहु वीर हनुमान आसन को प्रभु आइए सिया सखा सहित भगवान सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय. दोहा 229 of Balkan. सुमिरि सिय नारद बचन उपजी प्रीति पुनीत चकित बिलोकति सकल दिसी जनुसि सुमृगी सभीत सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय. जनकपुर नगरी आए राजा राम जनकपुर नगरी आए राजा राम कन कन किन किन नूपुर धुनि सुनी कहत लखन सन राम हृदय गुनि मानहु मदन दुंदुभि दीन्हि मनसा विश्व विजय कह कीन्हि आए राजा राम अस कही फिरी चितये तेहि ओरा सिय मुख शशि भय नयन चकोरा भये बिलोचन चारु अचंचल मनहु सकुचि निमित जे दिगंचल आए राजा राम देखी सिय शोभा सुख पावा
हृदय सराहत बचनु न आवा, जनु बिरंचि सब निज निपुनाई, बिरचि विश्व कह प्रगति दिखाई, आए राजा राम सुंदरता कहु सुंदर करई, छवि गृह दीप सिखा जनु बरई, सब उपमा कवि रहे जुठारी, तेहि पट तरो विदेह कुमारी, आए राजा राम जनकपुर नगरी, आए राजा राम जनकपुर नगरी, आए राजा राम। सिय शोभा हिय बरनि प्रभु, आपनि दशा विचारी, बोले सुचि मन अनुज सन, बचन समय अनुहारी, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। तो राम और लक्ष्मण जनकपुर में है और यहाँ सीता राम का मिलन होने वाला है। So we talking about the meeting of Sita and Ram. So when we stopped last week, we read that Sita, in her complete modesty but still filled with love, put one of her friends in front and said, let us go and see Sita, Ram and Lakshman. And she remembered नारद जी के बचनों को स्मरण करके, she remembered the words of नारद मुनि और मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई, and she had pure love developed in her heart, unadulterated love, and मानो डरी हुई, and she kept looking in that direction, चकित होकर सब और इस तरह देख, she began to look in all directions to see where exactly he is. तो यहाँ कहते हैं कन कन किन किन नुपुर धुनी सुनी. What is happening to Ramchandra ji in the meantime? We read about Sita. So he says here, kan kan, हाथों के कड़े, कड़े is the bangles on the hand, और किन किन नूपुर धुनी सुनी, करधनी, करधनी is the jewelry that is worn around the waist, kardhani, और पाय जेब, पाय जेब is the anklets, पाय is feet. In सब का शब्द, he heard the sound of these, the bangles, the anklets and the jewelry around the waist. तो श्री रामचंद्र जी के हृदय में विचार कर लक्ष्मण सीधे कहते हैं, so he thinks carefully, where is all of this sound coming from? And he says to Lakshman ji, यह ध्वनि ऐसा आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है. So he says to Lakshman, मानहु मदन, मदन is कामदेव, दुंदुबी दीन्ही, he is डंके पर चोट मारी है, he is announcing, in other words. What is he announcing? That he has made a sankalp, a resolution, कि विश्व को जीतने का, to overcome the entire world with his love attraction. Kamdev is the god of love, if you want to call him that, the devata responsible for love. So Ramchandra ji is saying to Lakshman that it seems as if Kamdev, through all of these sounds, is declaring his intention. He's announcing publicly, he's beating his drum to say that I am now coming to overcome, to attract the entire world. ऐसे कई फिर चित ए ओरा, ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिर कर उस ओर देखा. So he was attracted, firstly, Ramchandra ji was attracted by the sweet sounds. So sweet music, sweet sounds
pleasant sounds should always be appealing to the mind. And if it is appealing, then it should attract us. So it has attracted Sri Ramchandra ji. Fir kar us or dekha. He turned around to see where from which direction that sound is coming from. He turned to see in that direction. Right? और सीता जी को के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए. So he hasn't seen Sita ji yet. Sita mukha sasi bhaye nayana chakora. His eyes became like that of a bird, a partridge, that looks at the moon in awe. That means he wants to see the beauty as represented in this here as the Chandrama, the moon. Her face is like the full moon, beautiful, and he is longing to see that, right? Sundar netra sthir ho gaye, and his eyes became sthir. Sthir means fixed. See, generally, our eyes blink without us being aware of it. In his case, the eyes stopped blinking, and the explanation given, very nice explanation here. Mano nimi जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है. Nimi was the king, one of the ancestors of Raja Janak, who is considered to be seated in our eyes, in our eyelids, and causes us to blink. So it says here, it seems as if Nimi has decided not to see the scene. Why? Because he's from the bride's side. So it says here कि सकुचा कर पलके छोड़ दी. He left the eyelids. Nimi left the eyelids because it is not appropriate for a senior of the bride's family to see when the bride and the groom are meeting. So see the modesty that is followed strictly. So that's what it seems as if has happened, that the eyes are not blinking anymore because the one who causes the eyes to blink feels it is inappropriate to see this scene. So he saw the beauties, Sobha, of Sita, or Sukhu Pava, and he got extreme bliss. Bara Sukh Paya. हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं, and in his heart he is praising her beauty. Ramchandra ji is praising her beauty in his heart. That means he is not praising publicly. Again, modesty. Modesty in love is very important. कहते हैं कि किंतु मुख से वचन नहीं निकलता. No words can come out of his mouth. Also, he is only praising her in his heart because his mouth, his tongue refuses to work because it is so overcome by the beauty of Sita. And that beauty of Sita Mata is so, it's beyond comparison. It says, itna anupam hai. Anupam means upama rahit, beyond comparison. There is no comparison. Right? कि मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्ति मानकर संसार को प्रकट करके दिखा दिया है. So it seems as if Brahma, who has used all his expertise and proficiency to, and he has given this proficiency and expertise a form. That form is Sita. That means all the proficiency, all the expertise, all the quality, all the kala, the art
that Brahmaji possessed that would have allowed him to create this entire world. He has put all of that to create Sita Mata. Sundar taha kaha sundar karai, Chabigriya deep sikha janubarai. And it seemed as if Sita ji ki shobha, the beauty of Sita Mata, Sundar ka Sundarta ko bhi Sundar karne wali hai. That her beauty, her charm beautifies beauty itself. Her beauty beautifies beauty itself. So if you had to give beauty a form, that form will be made beautiful by Sita Mata herself. That is how beautiful she was. That she beautifies everything that is beautiful. Now, if you understand this carefully, if you have a Sita in your life, if you have this bhakti in your life, which Sita Mata represents, then everything that you see will be beautiful, because that bhakti beautifies all the beauty around you. वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही है. And it actually, besides the beauty, this beauty began to glow दीपक की तरह. So तुलसीदास जी says, सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर दिया रखा है. All the comparisons that poets make to try to show how beautiful Sita Mata is, all those are insignificant. They are tainted. They are defiled. They are not good enough. They do not do justice to the beauty of Sita Mata. मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी की किससे उपमा दूं? So Tulsidas ji is saying, he says, I have failed. What can I compare Sita's beauty with? There's nothing that can compare with that. इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके, so having described the beauty of Sita Mata in his own heart, Sri Ramchandra ji अपनी दशा को विचार कर, understanding his condition. What is his condition? He is overcome by the beauty of Sita Mata. Right? और पवित्र मन से, with a pure mind, अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समय अनुकूल वचन बोले. So see, when you are excited, when you become under the control, if I can use the word passion or love, when you become under the control of love, then we must act like Sri Ram. How must we act? Pavitra man se, with a pure mind. That means we need to control ourselves. When you know your condition, you control yourself first, and then you speak. You do not speak without bringing yourself under control. There has to be control in whatever you do, right? So there's no involuntary speech here. It is well thought out. It says, Samay Anukul, considering the occasion, the time, he spoke appropriate words. To who? To Lakshmanji, to his younger brother. So you can see from this that although love is supposed to excite us, it's supposed to attract us, if we follow the example that Sri Ramchandra ji is setting, there has got to be modesty in all of that. There has to be appreciation of that beauty and love. But an overarching principle is that there must be complete control, and we must act appropriately. We must speak appropriately, and we must act appropriately. So let's conclude today's recital here.
कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान। आसन को प्रभु जाइए, सिया सखा सहित भगवान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। Some bhajans now. राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, तू गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले हो। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, तू गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले हो। राम नाम अति मीठा है। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मेल न आने देना। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मेल न आने देना। हीरा जन्म अनमोल मिला, इस व्यर्थ गवाना देना। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मेल न आने देना। हीरा जन्म अनमोल मिला, इस व्यर्थ गवाना देना। अपने मन मंदिर में जो जला के देख ले। अपने मन मंदिर में जो जला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले हो। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले हो। राम नाम अति मीठा है। जिस घर में अंधकार वहाँ मेहमान कहाँ से आते। जिस घर में अंधकार वहाँ मेहमान कहाँ से आते। जिस मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आते। जिस घर में अंधकार वहाँ मेहमान कहाँ से आते। जिस मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आते। शीश झुके हरि मिलते हैं, झुका के देख ले। शीश झुके हरि मिलते हैं, झुका के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले हो। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले हो। राम नाम अति मीठा है। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम कहिए। सीताराम कहिए। सीताराम कहिए। सीताराम कहिए। सीताराम कहिए। सीताराम कहिए।
जाहे विधि रखे राम ताहे विधि रहिए, जाहे विधि रखे राम ताहे विधि रहिए। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, बुला के देख ले, बुला के देख ले, बुला के देख ले। गोविंदा गोपाला श्री श्यामा राधे, गोविंदा गोपाला श्री श्यामा राधे। गोविंद भजले प्यारे गोपाल भजले प्यारे, भजले राधे नाम तेरे काम आएगा, भजले राधे नाम तेरे काम आएगा। गोविंद भजले प्यारे गोपाल भजले प्यारे, भजले राधे नाम तेरे काम आएगा, भजले राधे नाम तेरे काम आएगा। राधे जी का नाम से ही कृष्ण दौड़ आए हैं, जिसने बुलाया राधे कृष्ण को वो पाया है। राधे जी का नाम से ही कृष्ण दौड़ आए हैं, जिसने बुलाया राधे कृष्ण को वो पाया है। गोविंद भजले प्यारे गोपाल भजले प्यारे, भजले राधे नाम तेरी काम आएगा, भजले राधे नाम तेरी काम आएगा। गोविंदा गोपाला श्री श्यामा राधे, गोविंदा गोपाला श्री श्यामा राधे। जपे जाओ राधे राधे भज मन गोविंदा, ब्रज भाव प्यारे राधे नागर नंदा। जपे जाओ राधे राधे भज मन गोविंदा, ब्रज भाव प्यारे प्यारे नागर नंदा। गोविंद भजले प्यारे गोपाल भजले प्यारे, भजले राधे नाम तेरी काम आएगा, भजले राधे नाम तेरी काम आएगा। गोविंदा गोपाला श्री श्यामा राधे, गोविंदा गोपाला श्री श्यामा राधे। गोविंदा गोपाला श्री श्यामा राधे, गोविंदा गोपाला श्री श्यामा राधे। राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे।
हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आश करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर। तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख कल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो धरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलो दया में, किस विध मिलो दया में। तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम राक्षक मेरे। स्वामी तुम राक्षक मेरे। करुणा हस्त बढ़ाओ, करुणा हस्त बढ़ाओ। द्वार पड़ा में तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। प्रेम सभा सब मिलकर निश दिन यही गावो। स्वामी निश दिन यही गावो। पार लगा दो नैया, पार लगा दो नैया। यही अरज गाओ। ओम जय जगदीश हरे।
जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। माता जय जगदीश हरे। ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। नारायणी नमोऽस्तुते। नारायणी नमोऽस्तुते। ॐ यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। विसर्जन क्षमा प्रार्थना। ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ अपराधसहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वर। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष त्वां परमेश्वर। बोलो श्री गणेश भगवान की जय। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्री लक्ष्मण जी की जय। श्री हनुमान स्वामी बजरंग बली की जय। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शिव शंकर भगवान पार्वती माता की जय। गंगा माता की जय। यमुना माता की जय। गौरी माता काली माता दुर्गा माता लक्ष्मी माता सरस्वती माता की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। जय सिया राम।